Hello friends, how are you? I am Satyanarayan and I am a 2019 batch IPS. So today we will continue with our Geography of India series. So in this we were covering the class 9 NCERT. So in the previous video in this series we have discussed the first chapter of class 9th NCERT and today we will proceed with the second chapter. Okay. So before moving to the actual discussion, let's discuss something which is presently going on, and that is lockdown. So as you all people know that lockdown has been extended by 2 week. जो लॉकडाउन है कोविड-19 की वजह से उसको 2 वीक के लिए बढ़ा दिया है. So I would like to say something about it to you people, and that is you should not worry about all these things which are not in your control. यानी कि whenever we are preparing for any kind of exam, whether it is UPSC or RPSC, RAS exam or whatever exam, we should not worry about the things which are not in our control. यानी कि हमें उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल उनसे परेशान नहीं होना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. और बिकॉज जो लॉकडाउन है दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, सो वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट. और इसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचते हुए कि कब ख़त्म होगा कब नहीं ख़त्म होगा. यू शुड कंटिन्यू with your studies without breaking the consistency, because as I have discussed in one of my video that consistency is the most important thing when you prepare for any type of competitive exam. So I hope that you people will continue with your studies and do not worry about things which are not in your control. Okay, so now come to the actual chapter. So first of all, as I told you, in this chapter we will discuss about the physical features of India. यानी कि जो भारत है वो उसमें कौन कौन से भौगोलिक आधार पर उनको बांटा जा सकता है. सो हम बांटेंगे भारत को इन द मेनली 6 डिविजन्स. ओके, सो द फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स. हम जानते हैं कि जो भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें लगभग जो पूरा है वो हिमालय की रेंज से कवर्ड है. सो इसको हम डिटेल में देखेंगे. देन नेक्स्ट इज द नदर्न प्लेन. तो हिमालय के बाद में जो साउथ की तरफ या जो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें नदर्न प्लेन है. और ये क्यों बना है? क्योंकि जो गंगा, इंडस और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं इन्होंने जो अपना पानी लेके आती है ऊपर से और उसके साथ साथ जो एल्यूवियम लेके आती है उसकी वजह से जो है ये मैदान वो हैं डेवलप हुए हैं, प्लेन्स. एंड नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो जो दक्षिण का पठार जिसको हम कहते हैं या डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक लावा प्लेट्यू है और इट हैज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द लावा जो निकलता है जमीन से उसकी वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ है. ओके, आई एम फाइंडिंग बिट डिफिकल्ट टू बोथ like mixing both Hindi and English, but I think for the sake of people who are preparing in either or Hindi or English, यानी कि जो लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए और इंग्लिश में भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए. अगर आप लोगों को लगता है कि आई शुड मेक सेपरेट वीडियोस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश एंड इट इज़ लाइक, अगर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है व्हेन आई switch between languages, if you feel that अगर नहीं समझ में आ रहा तो you people can tell me by writing in the comment section. I'll try to make separate videos. Otherwise if you are able to understand then it's fine. Please tell me about that in the comment section. Next जो है that is हमारा राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, we also call it Great Indian Desert. So the Indian Desert. Next जो है coastal plains, यानी कि जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है वो जाकर बे ऑफ बंगाल या अरब सागर में मिलती है. उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो नदियों के डेल्टा बनते हैं उसकी वजह से भी जो है मैदानों का डेवलपमेंट हुआ है एंड वी कॉल देम कोस्टल प्लेन्स. एंड फाइनल इज आइलैंड्स. तो वी नो मेजर आइलैंड ग्रुप्स जो हैं, वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एंड अनदर वन इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप. Okay, so this is the broad bird view of the physical features of India. So now we will discuss them in detail. हम उनको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. So in this video we will be discussing about Himalayan mountains and their classification and then the northern plains and their classification. Rest for we will discuss in the next video in this series. Okay. So सबसे पहले आते हैं हिमालयन माउंटेन्स पे. सो वी नो दैट दे स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, यानी कि जो उत्तरी जो बॉर्डर बनाता है भारत का वो है आपके हिमालयाज. ओके, देन दे आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स. सो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे तब हम देखेंगे कि जो माउंटेन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो फोल्ड या फोल्ड.
फोल्ड माउंटेन्स ऐसे होते हैं कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है, वो भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि जब दो प्लेट्स होती हैं वो जब आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, यानी एक दूसरे की तरफ कोलाइड करती है, तो उन दोनों के कोलिजन की वजह से जो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स बनते हैं वो होता है कि ये दोनों प्लेट्स जो आपस में एक दूसरे पे प्रेशर डालती है और उस तरीके से वहां का जो एरिया है वो इस तरीके से उठ जाता है और उसकी वजह से जो है वो माउंटेन्स का डेवलपमेंट होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हिमालयाज वी नो दैट कि जो एशियन प्लेट्स जो है आपकी इस तरह की जो एशियन प्लेट है वो कोलाइडेड विद यूरोपियन प्लेट। सो द इंडियन प्लेट और वी कैन कॉल इट द एशियन प्लेट दैट कोलाइडेड विद द यूरोपियन प्लेट, जो आपकी यूरोपियन एशियन प्लेट है उसके साथ कोलाइड किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द हिमालयाज हैव डेवलप्ड। सो आई थिंक वी कैन explain this in the map in the when the map comes in the next slide. Okay, so this is geologically young, यानी कि इनका जो निर्माण हुआ है वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के हिसाब से अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको, और दे आर रिलेटिवली यंग। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो हिमालय हैं दे आर ओल्ड, दे आर यंग। ओके, रिमेंबर दिस। देन उनका देखते हैं कि एक्सपेंशन कैसा है। सो वी नो दैट उनका जो एक्सपेंशन है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि इधर से ऐसे शुरू होते हैं और इस तरीके से ऐसे जाते हैं और फिर उसके बाद में लास्ट में जो वो इस तरीके के हैं। ओके, देन दे फॉर्म एन आर्क। आर्क आप समझते हैं विच इज लाइक एक आर्क शेप में है, एंड विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर्स। सो द एंटायर एक्सपेंशन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इज 24 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, बट दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट विच लाइक इज नॉट नेसेसरी टू बी रिमेम्बर्ड। देन देयर विड्थ, जो उनकी विड्थ जो है यानी कि जो उनकी चौड़ाई है दैट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। तो अगर हम कश्मीर का जो हिमालय देखते हैं या कश्मीर हिमालय जो है उनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है, विच रिड्यूसेस टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे जैसे वो हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है उनकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास रह जाती है, एंड दीज आर द एवरेज विड्थ। ओके, उसके बाद में फर्दर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम हिमालय का, बिकॉज दे फॉर्म्स 3 पैरेलल रेंजेस, यानी कि नेक्स्ट मैप में हम देखेंगे कि वो इस तरीके से जो है वो 3 पैरेलल रेंज बनती हैं, और उन जो तीनों का नाम है दैट इज ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री, लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल, एंड जो उसके बाद का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। सो दिस इज मेंशन्ड हियर, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक रेंज। इनको डिटेल में देखते हैं अभी। एंड अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज। तो आप जानते हैं कि जब दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है, जो लो लाइंग एरिया होता है, उसकी वजह से जो है घाटी का निर्माण होता है, दैट वी कॉल वैली। ओके, सो आई होप दैट द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालय इज क्लियर टू यू। अभी हम देखते हैं, इन द प्रीवियस वीडियो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये जो है दिस इज इंडियन प्लेट। ओके, दिस इज एंटायर इंडियन प्लेट, उसके नीचे का भी जो पोर्शन है दैट इज इंडियन प्लेट, एंड ये जो है वो है यूरोपियन प्लेट, जिसको हम यूरोपियन प्लेट के नाम से जानते हैं। सो वे बैक यानी बहुत हजारों साल पहले दिस बोथ प्लेट्स कोलाइडेड विद ईच अदर, यानी कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराई, और टकराने का कारण था कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरोपियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी। ओके, इसकी वजह से जो है यहाँ पे इन दोनों जो ये आपकी प्लेट से वो आपस में टकराती है, और यहाँ पे जो है ये पूरा हिमालय का निर्माण हो जाता है। इसकी जगह हम जानते हैं पहले जो है वो टेथिस सी था, यानी कि देयर वाज टेथिस सी, टेथिस सागर। तो ये सब आप जानते हैं, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो 3 पैरेलल रेंज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे कराकोरम रेंज है सबसे टॉप में, जिसकी हाइट काफी ज्यादा है, और जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है K2 वो कराकोरम रेंज में है। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद में है वो लद्दाख रेंज। तो कराकोरम रेंज के पैरेलली जो है वो लद्दाख रेंज। तो सबसे पहले हो गया आपका लद्दाख कराकोरम, फिर उसके बाद में जो है वो लद्दाख रेंज। तो ये दोनों है वो छोटी है, यानी कि ज्यादा उनकी लेंथ नहीं है। उसके बाद में आती है आपकी जंस्कार रेंज। ओके, सो मैप में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आ गया आपका कराकोरम, देन लद्दाख, और उसके बाद में जंस्कार। ओके, सो दीज आर 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस विच आर पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद में हम जो देखते हैं वो है ग्रेटर रेंज यानी कि हिमाद्री। सो ये जो है वो एक बहुत ही लंबी रेंज है, और यहाँ से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक कवर करती है। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर हिमालयाज। ओके, सो ये जो है वो है हिमाद्री। उसके बाद में आगे आता है ये बीच वाला। तो ये जो है वो इतना कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में से इसमें से पासेस हैं, लेकिन ये भी जो है वो काफी ज्यादा हाइट में है, और इसका नाम जो है वो है हिमाचल।
तो सबसे पहले जो है हिमाद्री, उसके बाद में जो है वो हिमाचल, यानी कि ये ग्रेटर हिमालयाज और ये जो है लेसर हिमालयाज। और जो थर्ड है जो लो लाइंग एरियाज में होती है या जो बाउंड्रीज बनाती है प्लेन के साथ, दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। ओके, सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय, हिमाचल यानी लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज। ओके, सो अभी इनको और फर्दर डिटेल में देखते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज, they are most continuous, as I shown in the previous map also, they are most continuous starting from Kashmir up to अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश तक कश्मीर से लेकर वो कंटिन्यूअस है, उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। They consists of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters। तो जो भी दुनिया की जितनी भी, अगर आप कहेंगे टॉप 10 जो पीक्स हैं, उनमें से 8 या 9 तो जो है वो इसी हिमालयन रेंज में मिलेगी। और माउंट एवरेस्ट जो है वो भी एक इसी का हिस्सा है, कंचनजंगा जो है वो भी इसी का हिस्सा है, दैट इज द थर्ड हाईएस्ट। सो उसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज अराउंड 6000 मीटर। दे कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। द फॉल्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, यानी कि जो फोल्ड होता है, अगर आप देखेंगे फोल्ड यानी कि सिल्वट जो होती है, तो वो जो फोल्ड है उनके वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि उनमें से असमानता मिलती है, वो इस तरीके के फोल्ड्स है, मतलब कहीं ज्यादा ऊपर है कहीं ज्यादा नीचे है। सो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो जनरली ये पूछा जाता है कि ये कौन सी रॉक्स के बने हुए हैं। सो दे आर मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, जो हिमालयाज जो हैं। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो लगभग साल भर हैं, दे आर स्नो बाउंड, यानी कि वो बर्फ से ढके रहते हैं। और उसकी वजह से जो है देयर आर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, जो बहुत सारे ग्लेशियर्स बनते हैं बर्फ की वजह से। और बहुत सारी जो रिवर्स है उनका ओरिजिन भी इसी रेंज में होता है। फॉर एग्जाम्पल सतलज, उसका भी जो है वो लगभग तिब्बत में इसका ओरिजिन है। उसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र है, जिसको तिब्बत में या चीन में उसको सैंगपो कहते हैं, तो इस तरीके से जो ये नदियां हैं उनका जो ओरिजिन है दैट इज इन द ग्रेटर हिमालय। सो आई होप ग्रेटर हिमालय इज क्लियर टू यू। इसको हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद का जो आता है, सपोज दिस इज अगर हम इसको नाम दें हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, तो इसके जो साउथ वाला जो अगली जो रेंज है वो इतनी कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में से वो कटी हुई है, लेकिन इसका जो नाम है वो है हिमाचल। सो दिस इज लेसर हिमालय और हिमाचल। तो अभी इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हिमाद्री हो गया, इधर जो है आपका कराकोरम, जंस्कार और लद्दाख रेंज है। सॉरी, दिस इज कराकोरम, दिस इज लद्दाख एंड दिस इज जंस्कार। उसके बाद में जो है ये ग्रेटर हिमालय, ओके, यानी कि हिमाद्री। उसके बाद में जो अगला इसके साउथ में जो है दैट इज ग्रेटर हिमालय। सॉरी, हाँ, ओके, दिस लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। एंड देन द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। सो हमने देखा था कि जो ग्रेटर हिमालय है या जो हिमाद्री है वो ग्रेनाइट रॉक्स का बना हुआ है, लेकिन जो हिमाचल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड, यानी कि जो चट्टानें हैं वो आपस में बहुत ही दबी हुई है, एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो रूपांतरित हो गया है। ओके, and the altitude varies between 3700 meter to 4500 meters। हमने देखा था जो हिमाचल का जो एवरेज हाइट थी दैट वाज अराउंड 6000 मीटर, और उसमें माउंट एवरेस्ट जैसी जो जिसकी 8000 के आसपास हाइट है वो उसका पार्ट थी, लेकिन जो हिमाचल है उसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 3700 से 4500 मीटर, एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। तो हमने देखा था कि जो आपका ग्रेटर हिमालय उसकी विड्थ भी ज्यादा थी और हाइट भी ज्यादा थी, लेकिन इसकी जो विड्थ और हाइट है वो ग्रेटर हिमालय से कम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेसर हिमालय। उसके बाद में जो पीर पंजाल है दैट फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और उसके बाद में ये ग्रेटर हिमालय, लेकिन उसके बाद में जो लेसर हिमालय है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज है वो है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल आपका जो कश्मीर वाला जो एरिया है मेनली उसमें है, और जो कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और जो आपका ग्रेटर हिमालय की जो जंस्कार रेंज है, इन दोनों की जो बीच की जो घाटी है उसको कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। उसके अलावा जो धौलाधर है एंड महाभारत रेंज है दे आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। ओके, सो इसके अलावा जो है धौलाधर जो मेनली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक्सपेंशन है, और महाभारत रेंज। दिस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। कश्मीर की जो घाटी है वो भी इसी रेंज में है, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। तो कांगड़ा एंड कुल्लू दे आर इन पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड दिस रीजन इज वेल नोन for its hill stations that we know very well, Shimla, Kullu, Manali, we keep on visiting there.
थर्ड जो है दैट इज द सदर्न मोस्ट हिमालय रेंज एंड इट इज नोन एज शिवालिक रेंज. सो दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज विच इज कॉल्ड शिवालिक. इसकी जो एवरेज विड्थ है इट इज अराउंड 10 to 50 किलोमीटर एंड इट हैज एन ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है दैट इज वेरीज फ्रॉम 900 मीटर टू 1100 मीटर. तो हम देखते हैं कि ये जो हाइट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है. पहले 6000 फिर लगभग 4000 और अब जो है वो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास इसकी हाइट है. तो आप देख सकते हैं कि जो हिमालय है वो लगभग, अगर आप इस तरीके का एक मैप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको साइड से. सबसे पहले जो आपका शिवालिक, उसके बाद में आपका हिमाचल और उसके बाद में आपका हिमाद्री. ओके, सो अगर आप साइड से देखेंगे तो लगभग आपको इस तरीके के मिलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि बीच में इनके इस तरह की घाटियां हैं, कंटिन्यूस नहीं है. जो बीच में जो पार्ट है वो घाटियां. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located further north. तो जो हिमालय से जितनी भी निकलने वाली नदियां हैं वो अपने साथ जो है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स लेके आती है, यानी कि मेनली जो है सैंड पार्टिकल्स और पेबल्स वगैरह वो लेके आती हैं एंड दे गेट ऑन डिपोजिटेड. तो ये जो उनके डिपोजिशन की वजह से बनी है ये जो रेंज है. सो दिस इज कंपोज्ड मेनली ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स. तो हमने देखा था कि हिमाद्री जो है वो ग्रेनाइट रॉक्स की बनी है. उसके बाद में हिमाचल जो है वो एक तरीके से जो आपका हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक से बना है. इन शिवालिक जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ unconsolidated sediments. This is the text which is given in the NCERT textbook and it is very important. UPSC या RPSC कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के और एग्जाम में रख दिए जाते हैं, ट्रू और फॉल्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर मल्टीपल जो सेंटेंस क्वेश्चंस होते हैं उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है. सो प्लीज रिमेंबर दिस सच इंफॉर्मेशन which I am highlighted here. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. तो I have already told, जो नदियां अपने साथ में जो भी लेके आती है मिट्टी वगैरह, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है. थिक ग्रेवल यानी कि कंकड़ वगैरह जो हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और ये जो रेंजेस हैं वो इससे कवर्ड है. The longitudinal valley lying between Himalaya and the Shivalik are known as dunes. तो अपन ने देखा था सबसे पहले ऊपर हिमाद्री था, फिर उसके बाद में हिमाचल है, और हिमाचल और जो शिवालिक है उसके बीच में जो आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जो देखेंगे, जो इस तरीके की जो वैली है, उनको जो है वो दून के नाम से जाना जाता है. तो जैसा हम जानते हैं देहरादून जो है वो एक इम्पोर्टेंट दून है. ओके, सो देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, दीज आर द इम्पोर्टेंट वेल नोन दून्स. ओके, सो इस तरीके से जो है हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाता है जियोलॉजिकल फीचर या उनकी हाइट के आधार पर. उसके बाद में जो हिमालय है उसको एक दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया है उनसे निकलने वाली नदियां और नदियों से बनने वाली जो वैलीज है उसके हिसाब से. तो हम देखते हैं कि जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक हिमालय जो है उससे बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है. तो अगर हम देखें तो इंडस जो रिवर है वो इस तरीके से ऐसे ओरिजिनेट होकर इस तरीके से बहती है. उसके बाद में बीच में और भी जो इंडस के बाद झेलम, चिनाब और रावी, सतलज और ब्यास जो नदियां हैं वो इंडस की सब हिस्सा है, और जो एक नदी है लास्ट में वो है सतलज. तो इस तरीके से ये जो आगे जाके और मिल जाती है, दैट वी विल कवर इन द रिवर पार्ट. ओके, अभी फिलहाल इतना याद रख लेते हैं जो सबसे वेस्ट वाली जो रिवर्स हैं दे आर इंडस वैली सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, एंड उसमें जो है इंडस और सतलज जो है उसके बीच की जो घाटी है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, या उसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है. सो इंडस और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है. उसके बाद में आपका सतलज से लेकर जो काली नदी है उसको जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से. तो मेनली ये उत्तराखंड में इसका एक्सपेंशन है और इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में काली से जो तीस्ता के बीच में दैट इज कॉल्ड नेपाल हिमालय, और इसका जो मोस्टली पार्ट है वो नेपाल में लाई करता है. तीस्ता जो है वो नेपाल से बहकर आती है. उसके बाद में तीस्ता से आगे दिहांग, दिहांग जो है वो जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र एंटर होती है तो वहां पे इसका नाम दिहांग होता है, वो हम रिवर वाले पोर्शन में देखेंगे. सो तीस्ता से जो ब्रह्मपुत्र तक या जो दिहांग तक है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, और उसमें मेनली जो असम और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है. फिर उसके बाद में हमने देखा था मैप में कि इस तरीके से एक्सपेंशन होने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इस तरीके से हो जाता है, इनका नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन हो जाता है. पहले जो है इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन था हिमालय का. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालय. और जो बियॉन्ड ब्रह्मपुत्र जो है, यानी कि यहाँ से जो आगे वाला जो हिमालय का पार्ट है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय. उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है? पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स.
तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अरुणाचल प्रदेश में पतकई हिल्स, उसके बाद में नागालैंड में नागा हिल्स, उसके बाद में मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और जो है लास्ट में आपका मिजोरम में मिजो हिल्स। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी रिमेम्बर्ड दैट हिमालय जो है वो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं है, बल्कि जो उत्तर पूर्वी भारत या जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें भी हिमालय का एक्सपेंशन है। 2017 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि हिमालय जो है उसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है। सो प्लीज रिमेम्बर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लीज पे अटेंशन। आई एम एक्सप्लेनिंग द things which have already been asked by the UPSC or there is high probability that they will be asked. Okay? उसके बाद में हमारा हिमालय कवर हो जाता है। अब हम आते हैं जो उत्तर के मैदान हैं, यानी कि नदर्न प्लेन्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि ये जो नदर्न प्लेन्स है, दे हैव बीन फॉर्म्ड बिकॉज जो हमारी जो 3 प्रोमिनेंट रिवर्स सिस्टम जो हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो इन नदियों के द्वारा जो ऊपर से मिट्टी और जो मृदा वगैरह जो लेके आते हैं वो लोग, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसके डिपोजिशन की वजह से ये जो है नदर्न के प्लेन्स बने हैं। तो ऊपर जो है वो हिमालय है और साउथ में जो है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और इसके बीच में जो है वो देयर एग्जिस्ट्स नदर्न प्लेन। So I have already told this has been formed due to the interplay of the 3 major river systems, namely the Indus, Ganga and the Brahmaputra and their tributaries, जो उनकी सहायक नदियां हैं। The plain is formed of the alluvial soil, यानी कि जो alluvial soil लेके आती है ये रिवर्स ऊपर से, उसकी वजह से बना है। The deposition of the alluvium, यानी कि ये जो soil जो है इसको alluvium कहते हैं, in vast basin lying at the foothills of the Himalaya और millions of years, ये एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल, 10 साल में नहीं बने, millions of years यानी लाखों सालों के डिपोजिशन की वजह से बने हैं। फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन, और हम जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का मैदान है, कृषि की दृष्टिकोण से बहुत ही उपजाऊ मैदान है, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल होती हैं, दे आर वेरी फर्टाइल सॉइल एंड बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। अगर आप देखेंगे इसका एक्सपेंशन जो शुरू होता है वो दिल्ली रिज के बाद से शुरू होता है, यानी कि दिल्ली रिज जो है वहां से शुरू होकर लगभग ये जो है आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाता है, और जहां तक ये हिमालय की जो साउथ वाली हिल्स आती है वहां तक इसका पूरा एक्सपेंशन है। सो दिस इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड अराउंड 240 to 300 किलोमीटर ब्रॉड, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर तक है। एंड दिस इज डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल है, और जो शुरू से ही है, हिस्टोरिकल टाइम से यहाँ पे जो है सब निवास करते आए हैं लोग। यहाँ के जो जंगल वगैरह है इनको काट के और एग्रीकल्चर करने लगे थे, बिकॉज जो रिवर्स है दे आर प्रोड्यूसिंग फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर करना बहुत इजी है, यानी कि जो कृषि करने का काम जो है वो बहुत इजी है। इसकी वजह से जो है वो शुरू से ही यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है, और जितने भी जो हिस्टोरिकल सिटीज हुए हैं, वेदर इट इज पाटलिपुत्रा जिसको हम पटना कहते हैं, या फिर उसके बाद में वाराणसी है आपका, जो भी बहुत हिस्टोरिकल सिटीज हैं, कानपुर, ये सब जितनी भी सिटीज हैं उत्तर भारत की जो है वो इसी एरिया में डेवलप हुई है। और हम देख सकते हैं जो यूपी और बिहार है उसकी जो पॉपुलेशन है इंडिया में, यूपी तो हाईएस्ट है, मोर देन 20 करोड़ ड्यू टू अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और जो बिहार है उसकी भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये आप देख सकते हैं जो पूरा उत्तर भारत का मैदान है दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है इसका बहुत ज्यादा है। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally productive part of India. तो I have already told जो नदियां हैं वो बहुत सारी मिट्टी वगैरह लेके आती है, उसकी वजह से जो एक रिच सॉइल कवर बनता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर सप्लाई काफी अवेलेबल है सिंचाई के लिए, और जो क्लाइमेट है वो भी काफी सूटेबल है। साल में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट चेंज होता रहता है, उसकी वजह से सर्दी गर्मी जो है, बारिश का जो मौसम है, उसकी वजह से जो क्लाइमेट है उस जो चेंज होता है उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो डाइवर्स एग्रीकल्चर पॉसिबल है। आप खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ये जो है इसी की वजह से पॉसिबल है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज एग्रीकल्चर की दृष्टिकोण से बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है। पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो इम्पोर्टेंट, वी कैन कॉल देम एज द लाइक डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो जो इंडस रिवर सिस्टम का जो पार्ट है उसको हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो गंगा और उसकी जो सहायक नदियों वाला जो मैदान है उसको हम गंगा मैदान या गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा ब्रह्मपुत्र की वजह से जो प्लेन है वी कॉल इट ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। आई थिंक नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द नदर्न प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ वेरिएशन, यानी कि अभी तक जो हमने देखा था वो इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट तक का एक्सपेंशन था उसका, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा। पंजाब हो गया आपका, फिर उसके बाद में गंगा, और रिवर सिस्टम के बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, और जो लास्ट में आपका ब्रह्मपुत्र या
असम का जो मैदान है। ओके, अब हम देखते हैं कि इनका जो हमें एक बार ऐसे देखने से या सोचने से लगता है कि ये जो पूरा का पूरा मैदान है वो समतल है और इसका जो रिलीफ है यानी कि जो इसकी जो सरफेस वाला जो फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं यानी कि समान हाइट के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी जो है वो बहुत सारे वेरिएशंस है और इस रिलीफ वेरिएशन की वजह से जो है वो नदर्न प्लेन को हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा है। सो जो कॉन्सेप्ट अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में 1-2 साल बाद में पूछ ही लेती है कि भाबर क्या होता है, तेराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाबर भाबर क्या है। तो अगर हम मैदान जो है पूरा अगर इस तरीके से अगर इसको बांटते हैं तो जो नदर्न मोस्ट जो हिस्सा है यानी कि जो इसका उत्तर वाला जो हिस्सा है उसको भाबर कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि दिस इज ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, यानी 8 से 16 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। तो जो शिवालिक माउंटेन रेंज थी हमारी उसके जो फुट हिल्स हैं यानी कि जो उसके जस्ट वहां पे जो खत्म होती है शिवालिक रेंज, वहां पे जो है ये बेल्ट है वो डेवलप हुई है। और वो डेवलप कैसे हुई है? दैट हैज बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ पेबल्स ब्रोट डाउन बाय द रिवर्स। तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी नदियां जो है वो हिमालय से निकलती है और ये जब नदियां मैदान में एंटर करती है तो इनके साथ जो कंकड़ पत्थर और जो बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि अब जो स्लोप होता है वो पहले तो पहाड़ों में जो स्लोप होता है उसका डाउनवर्ड स्लोप काफी तेजी से होता है, तो जो रिवर्स की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। लेकिन जैसे जैसे मैदान में एंटर होती है तो जो उसका स्लोप जो होता है, अगर स्लोप पहले इसका ऐसा था तो अब लगभग इस तरीके का हो जाता है। और ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे स्लोप चेंज होता है वहां पे ये सारे जो पत्थर वगैरह है इनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर की जो एक रेंज बनती है वहां पे ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं। और यहाँ वाला जो एरिया है बिकॉज ये बोल्डर्स वगैरह यहाँ डिपॉजिट होते हैं उसकी वजह से जितनी भी नदियां जो आती है उनकी जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि वो एक बार के लिए विलुप्त हो जाती है, वो दिखाई देना बंद हो जाती है बिकॉज क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे पेबल्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस वाले बेल्ट को हम कहते हैं भाबर। ओके, भाबर के बाद में आता है तेराई का रीजियन। तो अगर ये माउंटेन है आपके और अगर ये आपका प्लेन है तो हम यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे समझ लो लास्ट में शिवालिक है, शिवालिक के जस्ट फुट हिल्स जो है वहां पे आपका हो गया भाबर। और भाबर के बाद जो है वो तेराई। तो हम देखते हैं कि तेराई क्या है। तो तेराई वो वाला वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन है यानी कि जहाँ पे पानी पूरे टाइम भरा रहता हो। एंड वाई इट हैज डेवलप्ड और फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय द री इमर्जेंस ऑफ द स्ट्रीम्स और रिवर्स। तो जो ऊपर यहाँ पे जो भाबर वाले एरिया में जो जितनी भी नदियां जो उनकी स्ट्रीम्स है वो गायब हुई थी वो वहां पे वापस री एमर्जेंस हो जाती है उनकी, यानी कि वो जो है वापस सरफेस पे दिखने लग जाती है। और उसकी वजह से ये जो पूरा एरिया है वो एक तरीके से पूरे टाइम पानी में डूबा हुआ रहता है। दिस इज वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। और यहाँ जो है वो बहुत सारी वेजिटेशन वो डेवलप हुई है, इसकी वजह से इट इज थिकली फॉरेस्टेड, यानी कि जो फॉरेस्ट डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब पार्टीशन के टाइम पे 1947 के टाइम पे बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये वाले जो एरिया हैं वहाँ के जंगलों को क्लियर किया गया ताकि वो लोग एग्रीकल्चर कर सकें और वहाँ पे सेटल डाउन हो सके। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इन 1940s एंड 1950s बहुत सारे जो जंगल है वहाँ से काट दिए गए थे। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज भाबर एंड व्हाट इज तेराई। जनरली आप सुनते होंगे कि जो नेपाल का जो लोअर लाइन जो एरिया है वो उसको भी तेराई कहते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको तेराई में रहने वाले लोग कहते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट टू रिमेम्बर। आप लिंक इस तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के बीच में। लास्ट जो है दैट इज भांगर एंड खादर। सो भांगर क्या है? सबसे पहले हमने देखा था भाबर, उसके बाद में जो है वो तेराई। और दिस इज बी फॉर भाबर, दिस इज टी फॉर तेराई। और उसके बाद का जो अगला वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड भांगर। तो भांगर या भांगड़ जो है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन, यानी कि उसके बाद के जो जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट हम उसको भांगर कह सकते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ओल्डर एलुवियम, यानी कि जो नदियां पुराने टाइम में जो बहुत सारा डिपॉजिट्स वगैरह जो लेके आई थी ऊपर से वो धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होता चला गया नीचे से ऊपर की तरफ, और उसकी वजह से जो है वो भांगर वाला जो रीजन है वो डेवलप हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स टेरेस लाइक फीचर्स। तो विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो है मतलब पहले मान लो ऊपर से जब नदियां आ रही होगी पुराने टाइम में तो यहाँ पे एक लेयर डिपॉजिट हो गई, फिर उसके बाद में सदियों के बाद में एक दूसरी लेयर डिपॉजिट हो गई, उसके बाद में और लेयर डिपॉजिट होती रही। तो इस तरीके से जो इसका ग्रेजुअल राइज हुआ है और इसकी वजह से जो इसका लाइक सरफेस है वो टेरेस लाइक दिखती है। टेरेस यानी इस तरीके से। ओके, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सियस डिपॉजिट्स, यानी कि जो कैल्शियम है उसकी यहाँ पे मात्रा ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज कांकड़।
तो आई थिंक पीपल लिविंग इन शेखावाटी रीजन नोज दिस टर्म, दिस इज कॉल्ड कांकर और कांकड़। ओके, एंड नेक्स्ट इज खादर। तो खादर क्या होता है? जो नदियां जो नया डिपॉजिट लेके आती है, यानी कि जो रिसेंट पास्ट में जो डिपॉजिट लेके आई है, यानी यंगर डिपॉजिट और न्यूअर डिपॉजिट। बिकॉज वो जो नदियों के जो बाढ़ के मैदान होते हैं वहां पे डिपॉजिट होते हैं, और वो जो नदियों के बाढ़ के मैदान में जो ये न्यू डिपॉजिट्स होते हैं इनको हम कहते हैं खादर। और दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, क्योंकि नदियां जो है वो हर साल अपने साथ एल्यूवियम लेके आती है और वो यहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है। तो जो ऊपर टॉप वाली सरफेस होती है वो जो एल्यूवियम होता है वो काफी नया होता है, एंड वी कॉल इट खादर। सो दिस इज वेरी फर्टाइल बिकॉज बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए काफी सुटेबल है। इट इज सुटेबल फॉर इंटेंस एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप साल भर खेती कर सकते हैं, और ये जो आपकी मृदा जो है या सॉइल जो है वो कभी खराब नहीं होती है एक तरीके से। ओके, सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट द हिमालयाज। उनको हमने अलग अलग हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज में हमने ब्रेक डाउन किया और उनका एक्सपेंशन देखा। उसके बाद में वी कवर्ड द नदर्न प्लेन्स। तो इनको हमने पहले जो है वो लाइक पंजाब प्लेन्स एंड गंगा प्लेन एंड इंडस प्लेन, या सॉरी ब्रह्मपुत्र प्लेन में डिवाइड किया, या फिर उसके बाद में जो है हमने इसको भाबर, तेराई, भांगड़ एंड खादड़ में डिवाइड किया। ओके, सो दीज आर important classification. If you have any doubt in this, please write into the comment section or text me on the Facebook. I'll try to answer that. So before finishing down, once we have a quick revision, just 2 मिनट का एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसका नाम है कराकोरम। उसके बाद में जो उसके नेक्स्ट जो साउथ में है दैट इज लद्दाख रेंज। ये जो दोनों है वो ज़्यादा उनकी जो लेंथ है, जो उनका एक्सपेंशन है वो ज़्यादा नहीं है, एंड इट इज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन लद्दाख वाला जो रीजन है, लद्दाख और उसके भी जो नॉर्थ में रीजन है। उसके बाद में जो है आपकी जंस्कार रेंज। तो जंस्कार रेंज जो है वो थोड़ी बड़ी है, उसी का जो कैलाश रेंज है वो उसका हिस्सा है, जहाँ से इंडस रिवर भी निकलती है और आपकी जो मानसरोवर लेक वगैरह है वो सब कैलाश रेंज में। सो दिस इज पार्ट ऑफ दिस जंस्कार रेंज का ही एक्सपेंशन है। एंड उसके बाद में हमने देखा था ग्रेटर हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय है वो बहुत ही एक तरीके से काफी लॉन्ग रेंज है। वो यहाँ से शुरू होके आपका इधर से जो नंगा पर्वत है लगभग इधर से शुरू होके, और दिस इज अप टू लाइक दिस एंटायर अप टू अरुणाचल प्रदेश। दिस इज ग्रेटर हिमालय। ओके, एंड देन उसके बाद में हमने देखा था जो है वो बीच में जो थी वो थी आपकी हिमाचल रेंज। ओके, सो जो आपका धौलागिरी जो पर्वत है, या फिर जो इधर जो है पीर पंजाल जो रेंज है, ये है जो आपकी पीर पंजाल रेंज। सो दीज आर पार्ट ऑफ हिमाचल रेंज, महाभारत रेंज एज वेल। और उसके बाद में जो सदर्न मोस्ट है दैट इज शिवालिक रेंज। तो यानी कि जो ये लास्ट वाला जो हिस्सा है या जो लास्ट वाली रेंज है, यहाँ तक इसका एक्सपेंशन है, दैट इज शिवालिक रेंज। ओके, और उसके बाद में हमने देखा था कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो पतकई भूमि अरुणाचल प्रदेश में थी। आई टोल्ड यू दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ हिमालय ओनली। नागा हिल्स जो है वो नागालैंड में थी। उसके बाद में यहाँ पे मणिपुर हिल्स थी जो यहाँ पे दिखाई हुई नहीं है, और जो है वो मिजोरम वाला जो एरिया वहाँ पे मिजो हिल्स थी। उसके साथ साथ जो ये है, although this is not part of Himalaya, but still I am telling गारो खासी जयंतिया। तो जो मेघालय वाला जो रीजन है गारो खासी जयंतिया, ये जो है वो 3 अलग अलग पैरेलल जो को एग्जिस्टिंग यानी कि एक साथ ही जो है वो हिल हैं या जो है माउंटेन्स है, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों रेंजेस हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि जो ये वाला जो एरिया है पूरा, दिस इज आवर नदर्न प्लेन इंक्लूडिंग दिस वन। जो नदर्न प्लेन है उनका जो मेजर हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, बिकॉज जो इंडस की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब पाकिस्तान में जाके मिलती है। आई ऑल्सो टोल्ड यू द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, इंडस, झेलम, इधर जो है आपकी चिनाब, उसके बाद में रावी, सतलज और ब्यास। सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस एंड इंडस रिवर सिस्टम। उसके बाद में जो बाकी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम रिवर्स वाले सिस्टम में डिस्कस करेंगे। एंड आई टोल्ड यू दैट जो ब्रह्मपुत्र है उसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जो नामचा बारवा है यहाँ तक आती है ये, और फिर यहाँ से यू टर्न लेके और इंडिया में एंटर हो जाती है। सो दैट वी विल डिस्कस इन द रिवर वाला चैप्टर। ओके, सो आई होप दैट यू हैड हैप्पी लर्निंग। आपको इससे काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आपको अगर लगता है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है पर्टिकुलरली, सो दैट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मी ऑन द फेसबुक लिंक। सो दिस इज आई हैव मेंशनड हियर। ओके, now I request you people to please like this video,
एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और बाकी आरपीएससी या किसी भी जो स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है उनके लिए अगर दे आर प्रिपेयरिंग, प्लीज़ शेयर इट विद देम, प्लीज़ टेल देम दैट आई एम मेकिंग सच ऑसम वीडियोज वेयर यू कैन learn all the things very easily. I am trying to break down the things into components. आपने देखा होगा कि जो हिमालय है उसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि समझने में आसानी हो जाए, जो प्लेन्स है उनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि आसानी हो जाए समझने में। तो जब हम इस तरीके से जब चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट ईजी. So I request you people to please share this video with your friends and also subscribe to the channel and ask your friends as well to subscribe to the channel. Okay, thank you. Have a happy learning and have a good day.